ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں شہریار نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور رشتہ دار بھی نہ تھے، اس لیے وہ دنیا میں بالکل تنہا تھا۔ اس کے ماں باپ جب زندہ تھے تو وہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اس کا باپ گاؤں کے زمیندار کا ایک ادنا سا ملازم تھا اور اس کی حویلی میں کام کرتا تھا۔ شہریار کے باپ کی خواہش تھی کہ اس کی زمینیں ہوں، اچھا سا مکان ہو، اس کا خاندان خوشحالی کی زندگی بسر کرے، وہ بھی اچھا کھائیں پیئیں، مگر اس جیسے غریب آدمی کے لیے اپنا یہ خواب پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ زمیندار سے اسے جو تنخواہ ملتی تھی اس سے بمشکل ہی اس کے گھریلو اخراجات پورے ہوتے تھے۔ پھر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن شہریار کا باپ زمیندار کے کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا، جہاں سے واپس آتے ہوئے دریا کا پل پار کرتے ہوئے اس کا گھوڑا اچھل کر دریا میں جا گرا۔ دریا میں اس وقت طغیانی آئی ہوئی تھی، چنانچہ اس کی تیز موجیں آنن فانن اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ بعد میں اس کی لاش بہت دور دریا کے کنارے جھاڑیوں میں اٹکی ہوئی ملی۔ اب شہریار اور اس کی ماں دنیا میں تنہا رہ گئے۔ اس کی ماں ایک بلند حوصلہ عورت تھی۔ اس نے اپنی اور اپنے بیٹے کی گزر بسر کے لیے ادھر ادھر محنت مزدوری شروع کر دی، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ شہریار کی ماں سردی کے موسم میں بھیگنے کے سبب بیمار پڑ گئی اور چند دن بعد وفات پا گئی۔ یوں ماں کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد شہریار دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اسے بے سہارا اور لاوارث دیکھ کر گاؤں والوں نے اس کے گھر کی تمام چیزیں لوٹ لیں اور زمیندار نے اس کا گھر چھین لیا۔ یوں بیچارہ یتیم بچہ بالکل خالی ہاتھ اور بے ٹھکانہ ہو گیا۔ کم عمری کے باوجود شہریار بہت خوددار اور غیرت مند تھا، اس لیے اس نے کبھی کسی سے کھانے کی اور کپڑوں کی بھیک نہ مانگی، بلکہ وہ جنگل میں جا کر اپنے لیے پھل وغیرہ تلاش کر لیا کرتا تھا، پھر دریا کے کنارے جا کر اپنے کھانے کے لیے کچھ مچھلیاں وغیرہ پکڑ لیتا تھا اور رات کو وہ کسی استبل یا بھوسے کے گودام میں جا کر سو رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اگر اس سے کوئی کام وغیرہ لیتے تھے تو وعدے کے باوجود اسے مزدوری بھی نہ دیتے تھے، بلکہ اسے ایک آدھ روٹی یا کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے کر تنخواہ دیتے تھے۔ اس پر اسے بے حد دکھ محسوس ہوتا تھا۔ زمیندار کے اور گاؤں والوں کے ظلم پر وہ ہر وقت جلتا کڑتا رہتا تھا، جنہوں نے ماں باپ کے مرتے ہی اس سے اس کا گھر اور سب کچھ چھین لیا تھا اور اسے یوں دنیا کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اپنے گاؤں میں گزارنے کے بعد شہریار نے سوچا گاؤں کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے اور کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں عزت کی زندگی مل سکے۔ چنانچہ ایک دن صبح سویرے وہ اپنے گاؤں سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گاؤں کے علاوہ اور کسی گاؤں یا قصبے سے واقف نہ تھا، اس لیے اسے اپنی منزل کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس نے صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شمالی جانب سفر کرے گا۔ گاؤں کے شمالی جانب ایک بے حد گھنا اور وسیع و عریض جنگل موجود تھا۔ اس کے بعد اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ ان پہاڑوں کے دوسری طرف کیا تھا اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہ جانتا تھا، بلکہ ان پہاڑوں کی طرف لوگ جاتے ہی نہ تھے۔ اپنے گاؤں سے نکل کر شہریار جنگل میں داخل ہو گیا۔ اسے گھنے جنگل میں سفر کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ اسے بھوک اور پیاس نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے درختوں سے تازہ پھل توڑ کر کھائے، آرام کرنے کے بعد آگے چل پڑا۔ جنگل ختم ہونے کے بعد وسیع و عریض سبزہ زاروں کا سلسلہ آتا تھا۔ جب وہ ان سبزہ زاروں کو پار کر کے پہاڑوں کے دامن میں پہنچا تو شام ہونے کو آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف اترنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے سامنے کئی پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسے ان کی ڈلوانوں میں بنی ہوئی گزرگاہوں کے راستے دوسری طرف نکل جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ پہاڑ سے نیچے اترا اور دو پہاڑوں کے درمیان بنی گزرگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس گزرگاہ کے بعد بہت سی تنگ گھاٹیاں آتی تھی، وہ انہیں پار کرتا گیا۔ اب رات ہو چکی تھی، آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ شہریار پہاڑوں کے درمیان سفر کرتے کرتے بہت تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں رات ان پہاڑوں پر ہی گزار لیتا ہوں اور اگلے دن صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔
चुनाचे इसने इन छोटी बड़ी पहाड़ियों और चट्टानों में अपने लिए एक ऐसी जगह तलाश करनी शुरू कर दी जो हर तरह से महफूज हो, जहां वो आराम से सो सके। कुछ देर तलाश करने के बाद इसे एक ऐसी जगह मिल ही गई। इस जगह के ऊपर एक चट्टान ने साइबान कर रखा था, इसलिए वहां चांद की रोशनी न पहुंच रही थी और वो जगह मुकम्मल अंधेरे में थी। वो एक बड़े से पत्थर को तकिया बनाकर वहां लेट गया। अभी उसे लेटे थोड़ी देर ही हुई थी कि उसने इस जगह से कुछ फासले पर हल्की सी रोशनी होते हुए देखी। वो घबरा गया और उठकर बैठ गया। रोशनी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। शायद इस जगह कोई कुआं या खड्डा वगैरह मौजूद था जिसमें से वो रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी तेज से तेज होती गई। फिर शहरयार ने इस खड्डे में से 3 परियों को बाहर निकलते देखा। वो रोशनी इन परियों से निकल रही थी। इनके सरों पर ताज सजे थे। खड्डे से बाहर निकलकर इन परियों ने पर फड़फड़ाए, बाजू ऊपर उठाए और आसमान की तरफ परवाज कर गईं। शहरयार कुछ हैरत और खौफ से इन्हें आसमान की बुलंदियों की तरफ परवाज करते देखता रहा, यहाँ तक कि वो परियां इसकी नजरों से ओझल हो गईं। उसने सोचा, मुझे चलकर देखना चाहिए कि वो परियां किस जगह से आई हैं। वो जब इस मुकाम पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई खड्डा या गड़ा ना था, बल्कि एक बहुत ही पुराना सा कुआं था। चांद की रोशनी इस कुएं में अंदर तक जा रही थी और इस रोशनी में शहरयार को इस कुएं में उतरने के लिए बनी हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। इसे हैरत होने लगी कि आखिर इन पहाड़ों में ऐसी जगह पर जो बिल्कुल वीरान और सुनसान थी, जहां किसी का गुजरना होता था, किसी ने वो कुआं तामीर करवाया था। इस पुराने कुएं को शायद इन परियों ने अपनी रहने की जगह बना रखा था। शहरयार ने सोचा, नीचे जाकर देखता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। चुनाचे वो कुएं में बनी हुई सीढ़ियों पर कदम रखता आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। जब वो इसकी तह में पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं की एक दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था। वो उसमें से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने अपने आप को बेहद रोशन कमरे में मौजूद पाया। वो बहुत हैरानगी से इधर उधर देखने लगा। ऐसा कमरा उसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। इस कमरे का एक दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता था। वो उसे खोलकर उस कमरे में दाखिल हो गया। वो कमरा भी पहले कमरे की तरह बहुत ही खूबसूरत था। इसके आगे और कमरे और बड़े बड़े हॉल आते थे। शहरयार हैरानगी से इस जगह की सैर करता रहा। इन परियों ने अपने रहने के लिए इस पुराने कुएं के अंदर कितनी शानदार रिहाइशगाह बना रखी है। शायद उन्होंने इंसानों की दुनिया की सैर के लिए वहाँ ठहरने के लिए ये रिहाइशगाह बना रखी है। शहरयार ने खुद से बात करते हुए कहा। इस जगह की सैर करते करते शहरयार को काफी वक्त हो गया। उसे अचानक ख्याल आया, परियां किसी भी वक्त आ सकती हैं, इसलिए इनकी वापसी से पहले मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए। ये ख्याल आते ही वो तेजी से पहले वाले कमरे में वापस आ गया। इसी वक्त बड़ी जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ बेपनाह शोरगुल बुलंद होने लगा। शहरयार खौफजदा होकर एक कोने में छुप गया। इसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। उसी वक्त इसके चारों तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा और शोरगुल की आवाजें खत्म हुई तो उसने देखा कि वो इस वक्त इस शानदार और खूबसूरत कमरे में नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़े भयानक गार में खड़ा था, जिसकी दीवारें बिल्कुल सियाह थीं। इन दीवारों पर जा बजा इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी। एक तरफ लकड़ियों की आग पर एक बड़ा सा काला बर्तन रखा हुआ था, जिसमें से बहुत ही बदबू आ रही थी। इसके करीब ही एक लंबी चौड़ी मेज पड़ी थी जो सियाह पत्थर की थी। उस पर इंसानी खोपड़ियों और मुख्तलिफ हड्डियों के साथ साथ अजीब से आलात और बर्तन रखे हुए थे। उस मेज पर एक तरफ संगे मरमर की परियों के छोटे छोटे मुजस्मे खड़े थे। वो मुजस्मे बेहद खूबसूरत और चमकदार थे। शहरयार मेज के इस हिस्से में पहुंचकर इन मुजस्मों को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि हर मुजस्मे की एक टांग में सियाह रंग का लोहे का कील गड़ा हुआ था। उसे बेहद हैरत हुई। उसने मेज पर पड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू उठाकर एक मुजस्मे की टांग से वो कील निकाल दिया। जब वो कील जमीन पर गिरा तो इसको आग लग गई। ये देखकर शहरयार डर गया और घबराकर पीछे हट गया। वो समझ गया था कि वो इस वक्त किसी जादूगर के तिलिस्म में मौजूद था, जिसने इन परियों के मुजस्मों की टांगों में जादुई कील ठोंक रखे हैं। इसने सोचा, मुझे इस जगह से फौरन ही भाग जाना चाहिए। ये ना हो कि वो जादूगर यहाँ आन पहुंचे और मुझे भी अपने जादू के जोर से अपना कैदी बना ले। ये सोचकर इसने चाकू मेज पर रख दिया और बाहर को भागा। लेकिन फिर इसने सोचा,
क्यों ना मैं बाकी दो परियों के जिस्मों की टांगों से भी ये लोहे की कील बाहर निकाल दूं। ये सोचते ही वो वापस पलटा और मेज पर से चाकू उठाकर दूसरी परी की टांग पर से भी वो लोहे का कील निकाल दिया। इस कील को भी जमीन पर गिरते ही आग लग गई। इसके बाद इसने तीसरी परी की टांग से भी कील निकाल दिया, वो भी जमीन पर गिरते ही जल गया था। इसने चाकू मेज पर रख दिया और बाहर की सिमत भाग गया। लेकिन अभी वो दरवाजे तक पहुंचा भी ना था कि गार के बाहर कुएं में बड़ी खौफनाक किस्म की आवाजें बुलंद होने लगी। इसके साथ ही गार में स्याह रंग के धुएं की एक लकीर दाखिल होने लगी, जो सीधी मेज पर पड़ी हुई एक खोपड़ी में दाखिल होने लगी। शहरयार बहुत ही खौफजदा होकर खोपड़ी को देखने लगा। वो खोपड़ी अब मेज पर इधर उधर लुढ़क रही थी। फिर जब उसमें धुआं भरना बंद हो गया तो इसकी आंखों के गड़ों में बड़ी बड़ी खौफनाक सुर्ख आंखें दिखाई देने लगी। फिर एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, चोर लड़के, तू इस गार में कैसे दाखिल हो गया? तुझे नहीं मालूम कि ये मेरा गार है? यहाँ दाखिल होने वाला जिंदा नहीं बच सकता और तू भी अब जिंदा नहीं बचेगा। शहरयार ये सुनकर बहुत खौफजदा हो गया। इसके मुंह से खौफ की वजह से आवाज ना निकल सकी। ठहर, मैं तुझे किए की सजा देता हूँ। खोपड़ी से फिर खौफनाक आवाज बुलंद हुई। इसके साथ ही वो खोपड़ी मेज की सतह से बुलंद होती हुई शहरयार की तरफ बढ़ने लगी। शहरयार को अब अपनी मौत अपने सामने दिखाई देने लगी, लेकिन इसने अपनी जान बचाने का इरादा कर लिया था और बड़ी जुर्रत से काम लेते हुए पास ही जलते हुए चूल्हे में से एक लकड़ी निकाल ली और इसे घुमाकर पूरी ताकत के साथ अपनी जानिब बढ़ती खोपड़ी पर दे मारा। खोपड़ी में से एक भयानक चीख निकली। वो बड़े जोर से गार की दीवार से जा टकराई और इसके साथ ही ऐसा खौफनाक शोरगुल बुलंद हुआ कि ये शोर सुनकर शहरयार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब इसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो भयानक गार गायब हो चुका था और वो इसी खूबसूरत और शानदार कमरे में जिसमें वो पहले दाखिल हुआ था एक बिस्तर पर पड़ा था और इसके सामने 3 खूबसूरत परियां खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये वही परियां थी जिसको इसने कुएं से निकलकर आसमान पर परवाज कर जाते देखा था। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हैरत भरी नजरों से इन्हें देखने लगा। ये सब कुछ क्या है अच्छी परियों, मुझे बताओ, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? इसने पूछा। तुम इस वक्त हमारे घर में मौजूद हो अच्छे लड़के। हम तीनों बहनें तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें इस जालिम जादूगर की कैद से निजात दिलाई। परियां बोली। वो क्या किस्सा है अच्छी परियों, क्या तुम मुझे सुनाना पसंद करोगी? शहरयार ने कहा। हाँ ए नेक दिल लड़के, हम तुम्हें जरूर ये किस्सा सुनाएंगी। एक परी बोली। हम परिस्तान के बादशाह गुलफाम की बेटियां हैं। हमें बचपन ही से इंसानों की दुनिया की सैर करने का बेहद शौक था। हमने इंसानों की दुनिया के बारे में रंगारंग कहानियां सुन रखी थी जो हमारे शौक को और बढ़ा देती थी। हमारे माँ बाप हमारे इस शौक को अच्छी नजर से ना देखते थे। वो हमें अक्सर समझाते थे कि इंसानों की दुनिया की सैर हमारे हक में बेहतर साबित ना होगी, बल्कि हम इंसानों की दुनिया में जाकर तरह तरह की मुसीबतें या तकलीफों में गिरफ्तार हो जाएंगी। इसलिए हमें इंसानों की दुनिया की सैर करने का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए और आराम से अपने वतन में रहना चाहिए। लेकिन हमने अपने वालिदैन की बात का कोई असर ना लिया। फिर जब हम बड़ी हो गई तो हमने अपने माँ बाप से पूछे बगैर इंसानी दुनिया की सैर करने का इरादा कर लिया। हमें इंसानों की दुनिया की सैर करते हुए बेहद ही लुत्फ आया। हमने फैसला किया कि हमें वहाँ किसी ऐसी जगह पर अपनी रिहाइशगाह बनानी चाहिए और वहाँ रहते हुए इंसानों की दुनिया की सैर करनी चाहिए। चुनाचे हमने यहाँ पहाड़ों में गिरा हुआ ये पुराना कुआं तलाश किया और उसमें उतर गई। इसके अंदर इस गार में हमने अपने रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत महल बनाया। हम दिन में यहाँ पर रहती थी और रात को यहाँ से बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया की सैर को रवाना हो जाती थी। हमें यहाँ रहते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि जाने कहाँ से वो शैतान जादूगर इस कुएं में दाखिल हो गया। इस जालिम जादूगर ने अपने जादू के जोर से हमारे महल पर कब्जा कर लिया और इस जगह अपना भयानक गार बना लिया। हम उस वक्त माहिर गई हुई थी। जब हम वापस आई तो कुएं में उतरते ही जादूगर के जादू से उसने हमें छोटी छोटी संगे मरमर की परियों में तब्दील कर दिया। हम यूं ही पत्थर के मुजस्मे बनी रहती थी और हमारा कमरा उसका भयानक गार बना रहता था। लेकिन जब वो इस कुएं से बाहर जाता था तो इसका भयानक गार फिर हमारा खूबसूरत कमरा बन जाता था और हम अपनी असली सूरतों में वापस आते ही अपने वतन कोए काफ की तरफ रवाना हो जाती थी। लेकिन जब हम इसकी सरहदों के करीब पहुंचती थी तो अपनी टांगों में लगे हुए कीलों की वजह से हम 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी और कोशिश कर
करके थक जाती थी। इन कीलों पर इस जादूगर ने जादू कर रखा था कि जब कभी हम इन्हें अपनी टांगों से उतारने या निकालने की कोशिश करती थी तो उनमें से आग निकलने लगती थी। जब हम कुएं से बाहर होती थी तो हम चाहे किसी भी जगह पर होती, जादूगर के इस पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होते ही हम फौरन ही इसके जादू से इस गार में आकर संगी मुजस्मों में तब्दील हो जाती थी और हमारा ये खूबसूरत कमरा इसका बियाना गार बन जाता था। वो जालिम जादूगर हमें बहुत सताता और तंग करता रहता था। वो चाहता था कि हम उसे अपने बाप गुलफाम के खजाने का पता बता दे। वो इस खजाने को हासिल करने के साथ ही हमारे बाप की सुलेमानी अंगूठी को भी हासिल करना चाहता था ताकि हमारे बाप की जगह वो खुद परिस्तान का बादशाह बन जाए। वो चाहता था कि हम इसे अपने बाप की अंगूठी चुरा कर ला दें, लेकिन हम कभी भी इसे अपने बाप के खजाने का नहीं बताएंगी, ना ही उस सुलेमानी अंगूठी के बारे में। इसलिए वो हम पर बहुत सख्तियां करता था और जुल्म तोड़ता था। वो जालिम जादूगर जब कुएं में दाखिल होता था तो वो सियाह धुएं की सूरत में अपने गार में दाखिल होकर एक बड़ी सी खोपड़ी में घुस जाता था। इस वक्त इसकी खोपड़ी में जान पड़ जाती थी और वो इधर उधर हरकत करने लगती थी। हमने मालूम कर लिया था कि ऐसी हालत में अगर कोई इस खोपड़ी को तोड़ दे तो वो जादूगर मर सकता है और हम हमेशा के लिए इसके जादू से आजाद हो जाएंगी। लेकिन परिस्तान वापस हम इसी सूरत में जा सकती थी कि जादूगर का खात्मा करने वाला शख्स हमारी टांगों में मौजूद ये कील बाहर निकाल दे। लेकिन परिस्तान वापस हम इसी सूरत में जा सकती थी कि जादूगर का खात्मा करने वाला शख्स हमारी टांगों में मौजूद कीलों को बाहर निकाल दे। इसलिए ए नेक दिल लड़के, हम तीनों बहनें तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हैं और तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। हम यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे इस अजीम एहसान का बदला उतारना चाहती हैं। कहो तुम ए नेक दिल लड़के, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें हमसे किस किस्म की मदद दरकार है? अच्छी परियों, मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी मुल्क का हुक्मरान बन जाऊं। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी ए नेक दिल लड़के, हमारे साथ आओ, परी ने कहा। चुनाचे तीनों परियों ने शहरियार को एक तख्त पर बिठाया और कुएं से बाहर निकलकर इस तख्त के हमरा उठती हुई एक सिमत हो ली। आधी रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वो तारों भरे आसमान के नीचे सफर करते करते एक जगह पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। शहरियार ने देखा कि इसके सामने एक शानदार महल मौजूद है। अब हमारा काम खत्म होता है ए नेक दिल लड़के, परियों ने शहरियार से कहा। सुबह जब ये महल खुलेगा तो तुम्हारी मुराद बर आएगी। ये एक बहुत बड़े बादशाह की सल्तनत है जो बे औलाद है और अब बूढ़ा हो चुका है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस महल के दरवाजे पर जो बच्चा भी कहीं से आकर सबसे पहले पहुंचेगा वो उसे अपना वली अहद बना लेगा और उसके मरने के बाद वही उसकी सल्तनत का हुक्मरान बन जाएगा। हमने कल रात इस मुल्क की सैर करते हुए ये ऐलान सुना था। अब सुबह होते ही जो ही ये महल का फाटक खुलेगा, पहरेदार तुम्हें बाहर खड़ा पाकर सीधे बादशाह के पास ले जाएंगे। वो तुम्हें अपना वली अहद बना लेगा। फिर इसके मरने के बाद तुम उस मुल्क के बादशाह बन जाओगे। हमारी नसीहत है ए नेक दिल लड़के कि बादशाह बनने के बाद तुम अपनी राया के लिए एक मिसाली हुक्मरान बनना और इंसाफ से काम लेना। मैं तुम्हारी इन नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करूंगा अच्छी परियों। शहरियार ने एहसान मंदी से जवाब दिया। अच्छा तो नेक दिल लड़के, अब हमें इजाजत दो। अब हम अपने घर जाती हैं। अब हम कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आएंगी, बल्कि आराम से अपने वतन में रहेंगी। परियों ने कहा। खुदा हाफिज ए नेक दिल परियों, तुम मुझे हमेशा याद रहोगी, शहरियार ने मुस्कुराते हुए कहा। परियों के जाने के बाद शहरियार फाटक के करीब ही लेटकर सो गया। जब सुबह हुई और दरबानों ने महल के फाटक खोले तो उन्हें बाहर शहरियार सोता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उसे देखते ही बेहद खुशी का इजहार किया और उसे जगाकर अपने साथ बादशाह के महल में ले गए, जहां बादशाह और मलका इसे देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने इसे अपना बेटा बना लिया और उसको वली अहद बनाने का ऐलान कर दिया। अब शहरियार बड़े ऐशो आराम से शाही महल में रहने लगा। इसकी बड़े आला पैमाने पर तालीम और तरबियत होने लगी, यहाँ तक कि काफी मुद्दत गुजर गई और बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद शहरियार इस मुल्क का बादशाह बन गया। इसने बादशाह बनते ही अपने परियों से किए हुए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश की और जब तक जिंदा रहा बड़े अदलो इंसाफ से हुकूमत करता रहा और अपनी राया के लिए एक मिसाली हुक्मरान साबित हुआ।